Hello students, today we are going to discuss exercise questions of chapter How do organisms reproduce, page number 141. So in last class we discussed all these MCQs and the in-text questions, and today we are going to start with the question number 4. So what is question number 4? What are the advantages of sexual reproduction over asexual reproduction? तो अब इसका क्या एडवांटेजेस हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर. सो वी हैड डिस्कस दिस. अपने नोट्स में आप चेक कीजिए हमने क्या डिस्कस किया था. जो टॉपिक आपने लिख रखा है ना, वाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके अंडर में मैंने लिखवाया हुआ है काफ़ी सारे पॉइंट्स है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों है या उसके क्यों है, क्यों क्या बेनिफिट है. देखो, जहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट इन्वॉल्व है, वेरिएशन जो उसमें आते हैं जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो कम होते हैं. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, द वेरिएशंस विच आर कमिंग, the number of variations arising is greater as compared to the asexual reproduction, because in sexual reproduction gametes, special cell called gametes are involved which are derived from two parents. So that's why the number of variations या the possibilities of occurring the variation increases. तो जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा तो उतना ही वो एनवायरनमेंट के में सर्वाइव करने के लिए उस स्पीशीज़ को बेनिफिट मिलेगा. एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि दिस वेरिएशन इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर एवोल्यूशन. जो एवोल्यूशन है, जो चेंजेस आते हैं किसी ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल के इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, नॉट इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स में जो चेंजेस आते हैं ओवर मैनी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स, दीज वेरिएशन फॉर्म द बेसिस फॉर दैट. सो व्हाट यू हैव टू राइट इज द आंसर इज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स because it results from the fusion of two gametes coming from different individuals. Therefore, greater variations are generated, which is necessary for evolution. इतना है. नहीं तो सिंपल वर्ड्स में भी आप सिंपल, अगर 1 मार्क के लिए पूछा हुआ है या इसको आपको बहुत शॉर्ट उसमें आंसर करना है, तो जस्ट यू कैन राइट बिकॉज इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देर आर ग्रेटर चांसेस ऑफ वेरिएशन विच फॉर्म्स द बेसिस फॉर एवोल्यूशन. सिंपल एक लाइन में इसका आंसर है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग्स. इसको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. क्या फंक्शंस होंगे टेस्टिस के? फर्स्ट थिंग या फर्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, एंड सेकेंड थिंग इज secretion of male hormone called testosterone. Sperms are the male gametes which and this one testosterone is the male hormone which is responsible for the secondary sexual characters. So simple. इसका तो आप लिखना है कि formation of sperms and secretion of testosterone. Then next thing is next question is why does menstruation occurs. अब ये हमने नोट्स में लिखा हुआ है कि what happens when egg is not fertilized. What happens when egg is not fertilized? What happens? Because every month the uterus prepare itself to receive an fertilized egg. And what are the changes that occur in uterus? Because it is preparing itself to receive an fertilized egg, that is the lining of the uterus gets thickened, there is rich blood supply, and in case there is no fertilization of the egg, then the egg lives for 1 day, and then it along with the egg, the lining of the uterus and some blood is released through the vagina, which is known as menstrual cycle. We have written this then, so there is no need to write this answer again. बाकी हमने इसको लिखा हुआ है एज इट इज़, ये आंसर रहेगा. देन ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर. तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बेटा हमने आपको कहा था इसमें जब हमने फ्लावर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किया था, तो आई आस्क्ड यू टू ड्रॉ द डायग्राम ओवर देयर labeling all the different 4 whorls of the flower. So I think you have drawn this diagram in your text, this one notebook. So it is there. तो इसको दोबारा से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है.
Then next question is what are the different methods of contraception? तो बच्चे ये वाला जो है वी हैव रिटन देयर कॉन्ट्रासेप्शन के डिफरेंट मेथड्स क्या हैं ये भी हमने अपने नोट्स में लिखा हुआ है. 3 मेन मेथड्स वी हैव डिस्कस्ड इन आवर नोट्स, दैट इज दिस वी हैव डिस्कस्ड दिस फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली. सो 3 जो मेथड्स हमने डिस्कस किए हैं, व्हाट आर दोज मेथड्स? एक तो बैरियर मेथड, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द केमिकल मेथड, देन आईयूसीडी एंड सर्जिकल मेथड. तो ये जो हमने डिस्कस किया था तो वो एज इट इज़ है, तो अगेन देयर इज़ नो नीड टू राइट दिस आंसर. बाकी ये उसके लिए जो हमने वहाँ लिखा हुआ है पॉइंट्स द सेम जो है इसके लिए भी रहेंगे, इसके क्वेश्चन नंबर 8 के लिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. How are the modes of reproduction different in unicellular and multicellular organism? अब देखो सिंपल ये क्वेश्चन क्या है कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे डिफर करते हैं. आप एक तरीका ये है कि आप इसे ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है. नहीं तो उन्हीं पॉइंट्स को क्वेश्चन के रिलेवेंट बना करके आप फिर लिख सकते हो. जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 9 इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस जनरली बाय एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लाइक बाइनरी फिजन, फ्रैगमेंटेशन एक्सेट्रा, whereas multicellular organism cannot simply divide by cell to cell to form tissues which coordinate to form organs and organ system. So they reproduce by complex method and have special cell called gametes for रिप्रोडक्शन. यानी कि एक खास बात क्या है कि जैसे हमने देखो आप देखो हमने एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के डिफरेंसेस लिखे हैं, वही पॉइंट्स आप इनमें भी मॉडिफाई करके हमने लिखने होते हैं. जैसे कि आप ये भी इसमें कर सकते हो कि जैसे कॉलम के फॉर्म में भी बना सकते हो इसको कि यूनिसेलुलर रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट इज दिस ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय डिफरेंट मेथड्स लाइक बाइनरी फिजन, फ्रैगमेंटेशन, ठीक है. बट देन इसमें लिख सकते हो कि दे रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन और दिस वन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. देन ओवर देयर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए सेकंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि इसमें देयर नो स्पेशल गैमेट्स, स्पेशल सेल्स आर देयर फॉर रिप्रोडक्शन. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई स्पेशल सेल्स नहीं होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, जबकि मल्टीसेलुलर में स्पेशल सेल्स होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं हम, ठीक है. तो इनको इन्हीं पॉइंट्स को कॉलम के फॉर्म में भी बना सकते हो. इट्स योर ओन क्रिएटिव राइटिंग कि आप किस तरीके से आंसर को रिप्रेजेंट करते हो. पॉइंट्स वही रहेंगे बच्चे. आप बार बार ये देखो जो हमने मेन पॉइंट्स एनसीईआरटी में पढ़े हैं, जो कवर किए हैं, पॉइंट्स वही रहते हैं. सिर्फ आपको उसका क्वेश्चन जो आपसे पूछा हुआ उसके रिलेवेंट आपको उसके अकॉर्डिंग उन्हीं पॉइंट्स को मॉडिफाई करके लिखना होता है, ठीक है. और ज़्यादा बेटर ये रहता है आप एनसीईआरटी फॉलो करो, एनसीईआरटी की लैंग्वेज फॉलो करो. पता है क्यों? क्योंकि क्या होता है कि आपकी जो आंसर की होती है, जो सीबीएसई से जो आंसर की मिलती है, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके हाईलाइट करके दिए होते हैं कि ये पॉइंट अगर बच्चे ने लिखे हैं तो उनको इतने, इस पॉइंट के हाफ मार्क्स मिलने हैं, इस पॉइंट के 1 मार्क मिलने हैं, इस तरीके से होते हैं. और कहाँ से होते हैं वो पॉइंट्स? आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से होते हैं और वो बाहर से नहीं होते हैं. तो आपको क्या, जो आप बार बार एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो आपको कुछ जो टेक्निकल टर्म्स है उनके ऊपर जो कमांड है वो अच्छी हो जाएगी. आप उनको बार बार अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो उन वर्ड्स को. तो क्या है कि आपका आंसर ना स्कोरिंग हो जाता है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज? सबसे पहले कि रिप्रोडक्शन जो है किसी भी स्पीसीज़ को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कैसे करेगा. देखो रिप्रोडक्शन सबसे पहली चीज़ कि वो एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि अगर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सर्वाइव नहीं करेगा. वो सर्वाइव करेगा, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपने देखे हैं
है ना, जो रिप्रोड्यूस नहीं करते लेकिन वो सर्वाइव करते हैं वो ऑर्गेनिजम्स। अब बात आती है कि वो स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड, लेकिन वो ज़रूरी क्यों है रिप्रोडक्शन ज़रूरी इसीलिए क्योंकि वो किसी भी पॉपुलेशन को स्टेबिलिटी देता है। यानी कि अगर वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो उसी जनरेशन में अगर कोई कुछ भी ऐसा एबनॉर्मेलिटी होती है, कुछ भी ऐसा होता है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म की आपको पता है कि लाइफ स्पैन होती है, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो ऑर्गेनिज्म को उसकी डेथ हो जाएगी। तो अब फिर क्या होगा, वो पॉपुलेशन तो ख़त्म हो गया। अब ये कोई थोड़ी कि नया पॉपुलेशन फिर कोई और नया ऑर्गेनिज्म किसी टाइप का आ रहा है। तो वो स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन होती है, वो रिप्रोडक्शन से मेंटेन होती है। जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो पास होती है डीएनए की मदद से, जब वो डीएनए की मदद से जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन पास होती है, जिसे वो ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट से रिसेंबल करता है, वो अपने नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करना जानता है, तो क्या है कि उस स्पीसीज़ की जो है एक स्टेबिलिटी बनती है और वो लंबे समय तक रहती है। तो आप इसका आंसर आप लिखोगे कि देखो, इन रिप्रोडक्शन डीएनए पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, कॉपिंग ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस विथ कंसिस्टेंसी बट विथ माइनर वेरिएशंस। दिस कंसिस्टेंसी लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज। ये टू द पॉइंट है ये आंसर कि आप जो कॉपिंग है डीएनए की, उससे क्या होता है, हमारा जो स्पीसीज़ है उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। एक डॉग है तो उसका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी डॉग ही होंगे एंड ऑलमोस्ट वही उसके फीचर्स होंगे जैसे उसके प्रीवियस जनरेशन में थे। तो दैट मीन्स कि अभी आने वाले 10 जनरेशन के बाद भी हमें देखने को मिल सकता है कि हाँ, ये डॉग नाम का ऑर्गेनिज्म है, एक स्पीसीज़ है ना। तो दिस इज अबाउट स्टेबिलिटी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। यस, तो अब जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की जहाँ हमने बात की थी, तो उन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का अडॉप्ट करने का, उनको यूज़ करने का क्या रीज़न है, तो ये हमने देखो डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। हर चीज़ के साथ में डिस्कस क्यों है कि सबसे पहला कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से हम बच सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ करने से। सेकेंड थिंग कि जो है हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, टाइम अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड कर सकते हैं। सो दिस कैन बी द रीजन्स फॉर अडॉप्टिंग। द रीज़न देखो, आंसर देखो इसका, द रीज़न फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कुड बी protection from sexually transmitted diseases, restricting the number of children, controlling the population, ठीक है, अवॉइडिंग द जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज, कुछ मतलब वो यही पॉइंट्स हैं और यही आ जाता है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि रिस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो इसी चीज़ में आ जाता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड करना। तो इसीलिए मैंने 3 ही पॉइंट लिखे हैं, तो आप यही 3 पॉइंट्स मेंशन कर लो, ठीक है। तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बच्चे। तो हमारा ये जो चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये ख़त्म होता है। तो अब आपको मैंने बताया था कि आपने इसमें ये जो व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर, ये नहीं लिखना है, ड्रॉ लेबल डायग्राम ये नहीं करना है क्योंकि एज इट इज़ हम कर चुके हैं। व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ये भी हमारे पास नोट्स में एज इट इज़ है। तो अब आपने जो है सिर्फ ये लिखना है कि व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये बहुत जगह आता है, ठीक है। और दूसरा जो ये फंक्शंस परफॉर्म बाय टेस्टिस, ये लिखना है। और इसके बाद हमने क्या करना है कि हाउ आर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और नेक्स्ट वन है कि हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी। एंड 11th वाला जो है व्हाट कुड बी द रीजन फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो बच्चे इतने आपने करने हैं रिटर्न वर्क, ये काफ़ी हो जाएगा आज के लिए, इतना ही, ठीक है बच्चे। So, thank you for today.